Hello dear friends, welcome to Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa. Myself Chauhan Digvijay. Today in this video I am going to teach the students of Standard 4th. My subject is English, Unit number 1, Neha's Alarm Clock, Part 1. Okay, so in our previous video we have learnt about the same unit. There are two sections in this unit. Number 1, in our previous video we have learnt about a poem Wake Up. Okay, WAKEUP, Wake Up. Now in this video I am going to teach about Neha's alarm clock. Topics covered here, I have taken hard words, their meaning, word meaning, explanation of lesson. Okay friends, so listen to me carefully. Okay, if you have any doubt you can send me or message. So again I am repeating, we have learnt in our last video about the poem Wake Up, and in this video I am going to teach about Neha's alarm clock as part 1. Okay, only hard words, meaning and explanation in this video. Okay, so here friends, I have taken some new words or hard words with their meanings, and I have given one example for the each hard word so that you can understand it in a better way. Okay, so friends, first word snuggles. Snuggles means to be in a comfortable position, to be in a comfortable पोजीशन. ओके, कुछ अच्छी स्थिति में होना, टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. ओके, सो एग्जांपल, ही स्नगल्स हिमसेल्फ इनटू द स्लीपिंग बैग्स. ही स्नगल्स हिमसेल्फ इनटू द स्लीपिंग बैग्स. स्लीपिंग बैग्स में वो अपने आप को कैसा महसूस करता था? कंफर्टेबल. ओके, he snuggles himself into the sleeping bags. Okay, now second word mutter. Mutter means say something in a very low voice. Say something in a very low voice. कुछ आवाज़, धीमी आवाज़ में कुछ बोलना, कुछ कहना. ओके, सो इसे बोलते हैं mutters. So Rasmi, example, Rasmi always mutters in the class. There are some students who like to mutter in the class. धीरे से कुछ मटरिंग कर रहे हो, बोलते हो जब सर पढ़ाते हो. कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी भी हैबिट होती है. So Rasmi always mutters in the class. There are some students who always mutter in the class. Okay, so this is not a good habit. Now third word windowsill. Windowsill. So it means the bottom part of window. Windowsill means the bottom part of window. विंडो का नीचे वाला भाग, नीचे वाला पार्ट. ओके, टॉप तो ऊपर वाला, बॉटम नीचे वाला. सो द बॉटम पार्ट ऑफ अ विंडो. नाउ इट्स यूज इन सेंटेंस. एग्जांपल, क्लोथ्स वर हैंगिंग फ्रॉम द विंडो सिल. Clothes were hanging from the window sill. Window sill, bottom part of the window, the clothes were hanging. Clothes वहाँ से लटकते थे. Okay, clothes were hanging from the window sill. Okay, now next word relax. Relax means free from tension.
टू बी फ्री फ्रॉम टेंशन, टेंशन में से फ्री होना, तनाव. ओके, सो आई ट्राई टू रिलैक्स बिफोर द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन हमें टेंशन होता है, सो आई ट्राई टू रिलैक्स बिफोर द examination. Okay friends, so have you understood these hard words? Okay, then now before I start my lesson, please listen to me carefully. This is first part, first unit and first part of this unit. Okay, so now I will read the lesson, you will understand and you will sit silently. Okay, so friends, this is the title of the lesson is Neha's alarm clock. Neha's alarm clock, apostrophe S. You can see in the title. So I will read this. Narrator says, so here narrator, I think you have been familiar this word. So narrator is a person who narrates something, कुछ जो narrate करते हो, किसी का वर्णन करते हो, इसे narrate बोलते हैं. क्या? narrate, to narrate. So here narrator means the person who narrates something, to relate or to recount. Okay, you can say to recount or to relate. So here narrator, ring ring ring. Narrator says ring ring ring, up goes the alarm clock at 6 in the morning. So आवाज़ आती है ring ring ring, up goes the alarm clock at 6 in the morning. अलार्म कब बजता है? 6 in the morning. Now Neha makes a face and covering her ears with a pillow. Neha makes a face and covering her ears with a pillow. अपने ऊपर वो नेहा क्या करती है? You can see in the picture. नेहा makes a face and covering her ears with a pillow. पिल्लो से अपना फेस को क्या करती है? कवर. Snuggles and under the warm blanket. Snuggles under the warm blanket. Snuggles under the warm blanket. So but she knows she has to get up. But she knows she has to get up. उसे पता है कि उसे उठना ही है. She mutters to herself. She mutters to herself. वो अपने आप कुछ बोलती है. Mutter. Okay, mutter means speak, say something in a very slow voice. She mutters to herself, अपने आप कुछ बोलती है. नेहा says, so नेहा क्या बोलती? This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. ये अलार्म है वो हर रोज़ मुझे बेड से 6 o'clock को बजता है और मुझे बेड से उठाता है, बेड से मुझे बाहर निकालता है. इट इज़ सो अनफेयर. वो अच्छा नहीं है. इट इज़ सो अनफेयर. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मुझे मॉर्निंग में थोड़ा और ज़्यादा सोने का अच्छा लगता है, मुझे पसंद है. सम स्टूडेंट्स ऑल्सो लाइक टू स्लीप टिल late morning. Okay, so usually at on Sunday most of the students wake up very late because there is a holiday in the school. So Neha also love to sleep a little longer in the morning. So I wish this clock would forget its job sometimes. So नेहा सोचती है कि ये क्लॉक है, अलार्म क्लॉक, तो वो अपनी ड्यूटी, अपना जॉब
कुछ समटाइम्स कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए अपनी ड्यूटी फॉरगेट कर दे, भूल जाए, तो कैसा रहता, वो ऐसा सोचती है। नेहा विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। सो क्या होता है, नरेटर सेज समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। नाउ नरेटर, सो समथिंग फॉल्स, कुछ नीचे पड़ जाता है, फॉल्स। नेहा स्माइल्स, नेहा हंसती है। ओके, नेहा सेज ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन। नेहा देखती है अचानक, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। सो हाउ हैप्पी, वो ऐसा सोचती थी कि उसका वो अलार्म क्लॉक है वो अपनी ड्यूटी भूल जाए। और क्या हुआ, अचानक उसका वो अलार्म है वो नीचे गिर जाता है। ओके, सो ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। अब वो ज़्यादा खुश हुई। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। सो अब दूसरे दिन क्या होगा, टुमारो, नेक्स्ट डे, आई कैन गेट अप लेट, वो अलार्म बजेगा नहीं और वो लेट से उठेगी, वो उसे जल्दी अब उठना नहीं पड़ेगा। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, देयर इज़ नो अलार्म। ओके, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। सो नेहा सोती ही रही। द स्मॉल creepy birds which come to the windowsill every morning find Neha still sleeping. Come to the next page, friends. So what happened? So next morning ऐसा होता है, there is no alarm. So नेहा सोती रही। So नेहा sleeps and sleeps. The small creepy birds, the small creepy birds, क्या हुआ, the small creepy birds which come to the windows sill every morning find नेहा still sleeping. कुछ birds आते थे। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि नेहा अभी सो रही है। ओके, सो वो एवरी मॉर्निंग आते, हर रोज़ मॉर्निंग में वो आते थे। तो नेहा ने वो बर्ड्स ने क्या देखा कि नेहा अभी सो रही है। ओके, बर्ड्स सेज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। बर्ड्स ने क्या बोला, वेक अप डियर, जल्दी उठो, वेक अप फास्ट, जल्दी उठो, वेक अप डियर, जल्दी उठो, वेक अप फास्ट। फिर क्या हुआ देखते हैं। नरेटर सेज नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। नाउ नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, उसने अब उठना शुरू किया। नेहा सेज ओह नो इफ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक इट इज़ दिस बर्ड्स। नेहा ने बोला कि अलार्म नहीं है, तो फिर क्या हुआ, इट इज़ दिस बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। मुझे उसका क्या इच्छा थी, ज़्यादा सोने की इच्छा थी। सो उससे ऐसा लगा कि अब अलार्म से मैंने छुटकारा पाया, तो ये बर्ड्स आ गए। सो बर्ड्स, क्रीपी बर्ड्स आ गए, जैसे वो उसकी आवाज़ आती है ची ची, ऐसा आपकी खिड़की में भी बर्ड्स आते होंगे शायद। ओके, सो आपने देखा होगा एट योर होम। सो वाई डोंट दे लीव मी अलोन, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नेहा का ये भी सपना था, ये इच्छा थी, उसकी ख्वाहिश थी, ये भी पूरी हो गई। ओके, सो क्या हुआ,
अब देखते हैं, why don't they leave me alone? Even this wish of Neha's come true. वो भी उसका इच्छा थी, उसकी ख्वाहिश थी, वो पूरी होती है. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. The next morning, दूसरे दिन, there is not only no alarm clock, there are no birds either. अब अलार्म क्लॉक भी नहीं था और बर्ड्स भी नहीं थे. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. But there is someone, कोई तो था, तो क्या हुआ? But there is someone else, कोई एक दूसरा था. Who does not want her to miss the school bus? स्कूल बस का टाइम हो गया था और वो पर्सन था, वो क्या नहीं चाहता था? वो नेहा स्कूल बस अपनी मिस कर दे, वो ऐसा उसकी इच्छा नहीं थी. वो पर्सन था कौन? कैन यू गेस हु इट इज़? आप गेस कर सकते हो, आप सोच सकते हो कौन हो सकता है? द बिग ब्राइट सन. यस, ये पर्सन नहीं है, लेकिन द बिग ब्राइट सन. यस, ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल. सो वहाँ पर क्या था? ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल. नेहा के रूम में एक वार्म स्माइल देता था. ओके, सो वो नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस कर दे. ओके, सो व्हाट हैपन? नेक्स्ट देखते हैं. सो नेहा सेज, ओ माई आईज, नाउ इट इज़ द सन वॉकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी. नेहा ने अब ऐसा ही सोचा कि ये सन भी मुझे क्यों सोने नहीं देता. नेरेटर सेज, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. इवन नेहा की ये विश भी ख़त्म हो गई, पूरी हुई. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स. नेहा क्लाउड्स के पीछे सन नेक्स्ट मॉर्निंग छुपा हुआ था. सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस. सो नेहा snores still till she hears her mother's voice. So नेहा अब क्या करें? टू ब्रेथ विथ नॉइज इन स्लीप. जो आप किसी के वो स्नोरिंग होता है ना, कोई रात में डिस्टर्ब करते हैं, कोई आजू बाजू हमारा ऐसा पर्सन हो, सो रहा हो. सो नेहा ऑल snores till she hears her mother's voice. What happened? Mother says, wake up, sleepy head. Mother says, wake up, sleepy head. Now sleepy person, उठो जल्दी. You will miss the bus. आप वो बस मिस कर देंगे. ओके, तो क्या हुआ? Oh no, why does mother have to wake me up? नेहा बोलती है कि oh no, why does mother have to wake me up? मदर मुझे क्यों सोने नहीं देती, क्यों मुझे जगाए? Narrator says, there is no escape now. अब वो बोलती है कि there is no escape. अब मैं बच नहीं सकती, अब एक भी बहाना यहाँ नहीं चलेगा. नेहा gets up and gets ready. सो नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी. वो उठ जाती है और रेडी हो जाती है. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? कैन यू इमेजिन नाउ? आप सोच सकते हो क्या हुआ था, क्या हो सकता है दूसरे दिन. नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट. हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock. शी कॉल्स आउट टू हर मदर. सो नेक्स्ट डे नेहा उठ जाती है एट 6 o'clock. शी कॉल्स आउट टू हर मदर. ओके, नेहा सेज, माँ, who woke me up today? So नेहा says, मम्मी, किसने मुझे आज जगाया? So come to next page. Narrator says, mother smiles. Who else? दूसरा कौन हो सकता है? You, of course. नेहा, but I was sleeping. How could I? मदर बोलती है कि अपने आप ही आप उठ गए. ओके, तो नेहा बोली कैसे? आई वॉज स्लीपिंग.
हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकती हूँ. नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून. वो ऐसा होता है कि मदर बोलती है, अब कैसे वो उठी वो. सो नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून. आप एवरी डे 1 बजे क्यों आप अपना लंच लेते हो. नेहा सेज आई फील हंग्री. नेहा बोलती है कि मुझे भूख लगती है. सो मदर सेज वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट. आप एवरी डे 9 बजे क्यों सोती हो. नेहा सेज बिकॉज आई फील स्लीपी. बिकॉज मुझे नींद आ रही थे इसलिए. मदर सेज देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू. मदर अब समझाती है कि आपके अंदर भी एक क्लॉक है. देयर इज़ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. सो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर एक क्लॉक है जो आपको हर बार बताता है कि व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, एंड कब उठना है. हम देखो हमारे जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं किसी थिंग से तो हमें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, हम उठ ही जाते हैं जब हम हैबिचुअल हो, क्योंकि हमारे इनसाइड एक क्लॉक है. ओके, सो नेहा सेज ओह आई बेटर रश नाउ. ओह आई बेटर रश नाउ. अब मुझे पता चला, मुझे अब रश जल्दी दौड़ कर जाना है. आई डोंट वांट टू मिस द बस. मैं अब ये स्कूल बस मिस करना नहीं चाहती. मदर सेज रिलैक्स, टुडे इज़ संडे. ओह, मदर सेज देयर इज़ अ वन सीक्रेट इन दिस लेसन. ओके, सो वो संडे भी नेहा देखो जल्दी उठ जाती है. और क्या होता है, मदर सेज रिलैक्स, टुडे इज़ संडे. आज क्या है, संडे है. ओके, नेहा सेज ओहो. सो दिस इज़ अ स्मॉल story, nice story. So dear friends, आपको भी क्या होता है, ऐसी हैबिट लगा देनी चाहिए. ओके, सो आपको स्कूल मिस करनी नहीं चाहिए. ओके फ्रेंड्स, नाउ in my next video I will give you answers of some questions. Okay, we will do some exercising related to this unit, Neha's alarm clock. So read this lesson twice carefully at home. Okay, if you have any kind of doubt, please ask me. Okay, now thanks a lot for watching this video, friends.